guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another and very important session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss about certain mistakes that all of you can avoid in the last month of your CLAT 23 preparation, because I'm pretty sure that while you listen to these mistakes or listen to the problem that you guys are facing, a lot of you would agree to me as well. So अगर आपको लग रहा है the problem that I discussed today and the solutions that I discussed today, and you guys also have similar issues, you can definitely take those solutions, involve it in your preparation, and they are definitely going to bear very good results in your preparation. The first and the very important thing that I think all of you would be facing at this point in time is that we have overwhelming syllabus over us. कि बहुत सारा हमें current affairs का backlog cover करना है ना, काफी सारा practice करना है. There are particular sections where we may not be able to do well. We are asked to do 3 mock tests every week. तो इतना सारा कैसे करें? How to cover so much, because कुछ चीजों में अभी भी अटक रहे हैं. कई बार हमारे mock score बहुत ज्यादा stagnant हो जा रहे हैं. How to move with that? Now what happens is, as a CLAT aspirant in the last 1 month, when I wake up in the morning, every single morning I will face these issues, wherein I will ask myself as to क्या करूँ मैं एक दिन में. It's so overwhelming, and as a result, a lot of CLAT aspirants are not able to manage anything major during the day. मतलब मैं दिन भर इतना confusion में निकाल देता हूँ कि मेरे को पता ही नहीं होता कि आज दिन भर में मैंने actually fruitful किया क्या. Now for this, what you guys can start doing is, you guys can start when you wake up in the morning. The first thing you do is decide the tasks for the day, जिसको हम scheduling कहते हैं दिन को, so that it makes your preparation extremely structured. अब मैं इसके फायदे बताता हूँ. अभी जो आपको पता है कि that you guys are quite overwhelmed with the preparation and there is too much to take at this point. अगर आप एक शेड्यूलिंग कर लोगे ना, आई एम नॉट आस्किंग कि आप एक घंटे की शेड्यूलिंग करो कि मेरे को 2 से 3 ये करना है, फिर 5 से 6 ये करना है. नॉट दैट. आइडेंटिफाई कि आपको कितने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आज रिवाइज करने हैं, उसके क्या सोर्सेज रहेंगे, आपको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो कहां से प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे वो किस टाइम पर दोगे, उसको कितने टाइम में एनालाइज करोगे. तो ये दिन में अबाउट 8 to 10 आवर्स के आसपास का अगर आप प्लान बना लोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू काइंड ऑफ फॉलो दैट एज वेल. अब यहां पर क्या होता है ना, कई बार 8 से 10 घंटे का प्लान हमारा बन जाता है, बट हम उसको फॉलो नहीं करते. अगर वो नहीं कर पाओगे तो वो कंसिस्टेंसी कभी बनी नहीं पाएगी. बट अगर आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए, तो हाउ इट हेल्प्स यू इज, एक तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक दिन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन हो सकती है जो आप उस 8 से 10 घंटे में करोगे. इट विल नॉट गेट टू ओवरवेलमिंग ऑन यू. एंड ऑल्सो इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रिपरेशन जो हम मॉक टेस्ट देते हैं, जिस तरीके की हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम उस जोन में आ जाते हैं क्लैट के. एंड दैट गेटिंग इनटू दैट जोन, बीइंग इनटू दैट, यू कुड से एग्जैक्टली जो हमारा क्लैट का प्रिपरेशन का जो जोन है उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू नीड दैट मोमेंटम फॉर द एग्जाम. अगर मैं आई एम गोइंग इनटू द एग्जाम, अगर मैं प्रॉपर्ली 1 महीना भी अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में घुस रहा हूं ना, ऑल्दो आई वुड फील कि देयर आर पीपल हु आर डूइंग बेटर देन मी, बट स्टिल आई विल हैव सम कॉन्फिडेंस दैट आई डिड सो मेनी मॉक टेस्ट, I did, you could say, a lot of preparation, a lot of practice, a lot of revision of current affairs. So I will be quite, you could say, confident about my preparation also going into the actual CLAT exam. So you guys can definitely try this out. Schedule your day, structure it properly. और वो सारा जो confusion है, जो वो overwhelming हो जाता है, बहुत जो stress हो जाता है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा. एंड हम स्ट्रेस की बात करें तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल काइंड टू ट्राई टू कंपेयर देयर रिजल्ट्स विद देयर पीयर्स. कई बार हमको होता है कि हमें कुछ मेंटर्स भी बोलते थे कि नहीं, अच्छा अभी तो तुम्हारा स्कोर 60 आ रहा है, तो इस साल तो क्लैट छोड़ दो, अगले साल दे देना, और हम बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीबडी हियर. Anybody who is giving you a negative vibe or giving you a feeling where you will not be able to clear this exam, just chuck those people out. अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं दे रहा है ना, इफ नोबडी इज प्रोवाइडिंग यू एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन द सेंस दैट हाउ कैन यू इंप्रूव योरसेल्फ, दोस पीपल आर नॉट रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट 30 days. वो आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, वो आपकी क्लैट प्रिपरेशन में नहीं काम आएंगे. तो यू कैन स्टॉप प्रिपेयरिंग, यू कुड से यूजिंग देयर स्ट्रैटेजीज और देयर, यू कुड से जो भी उनका मेंटरशिप वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो उसको नहीं करने की जरूरत है. Another very important thing is CLAT is 70% practice based. We as school students have a habit of doing the concepts first and then going for the exam, and that is the general way. हमने 12th तक ऐसे ही पढ़ा है. तो हमारा CLAT में भी कई बार ये हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमने कुछ लीगल की क्वेश्चन गलत कर दिए थे एक पर्टिकुलर टॉपिक की, तो लीगल पढ़ने लग जाते हैं. ऐसा नहीं करना है हमको. You have to solve more and more questions. So other than current affairs, and if you feel that certain subjects in DI or maths also you have to do, तो वहां पर आपको कुछ conceptual understanding चाहिए. बाकी जो 100 नंबर का पेपर है, which is legal reasoning, critical reasoning and English, इन 100 नंबर के पेपर की रोज प्रैक्टिस करो. Every single day solve sectional test and every alternate day, which is roughly 3 days a week, do mock tests as well.
अब कई बार होता है कि मॉक टेस्ट कैसे करें, सो आई थिंक यू वुड नो दैट ऑन 12 minutes to CLAT यू कैन विजिट आवर वेबसाइट 12minutes2clat.com। वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे विच वी आर डिलीवरिंग राइट एट योर रेस्पेक्टिव हाउसेस। ठीक है, आपको वो मॉक्स आपके घर पर मिल जाएंगे एंड यू गाइस कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दोस मॉक टेस्ट एंड यूज इट फॉर अ प्रिपरेशन, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। ठीक है, काफी सारी चीजें वो आपको मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं, वो काफी कुछ सिखाएंगे। I will also be mentoring you, so whoever takes the mock test series मैं उनको mentor भी करूंगा personally। I will give you a free mentorship session just to kind of streamline your preparation कि आप अभी क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर सकते हो लास्ट के एक महीने में, right? Another major thing that a lot of you have kind of felt during the preparation and which makes you थोड़ा underconfident is the habit of procrastinating, and that is one habit that most of us have। कि अभी कुछ लग रहा है कि यार ये तो मुश्किल होगा तो कल करते हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज तो थोड़ा मुश्किल लगने वाला है तो कल ट्राई कर लेंगे, और वो कल फिर आ ही नहीं पाता, ऐसे कल करके लास्ट महीना पहुंच गए। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू पिक अप दोस टॉपिक्स, है ना, ये वो टाइम है जब आप उन टॉपिक्स को पिकअप करो, उनको समझो कि कैसे कवर करना है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं करेंगे ना हम तो देयर विल नॉट बी अ टाइम वेयर वी विल बी एबल टू कवर दीज थिंग्स, राइट? तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि अगर अभी हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर आवर प्रिपरेशन, और कुछ जो वीक लिंक्स है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। सो गोइंग इनटू क्लैट, अ क्लैट एस्पिरेंट कैन नॉट हैव अ वीक सब्जेक्ट, यू कैन हैव सम सब्जेक्ट्स एज एवरेज एंड सम एज अबव एवरेज। अगर आप वीक सब्जेक्ट के साथ जाओगे तो आप एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली चीजों को कर नहीं पाओगे, विच विल यू कुड से प्रूव अल्टीमेटली जो आपके रिजल्ट पर वो शो हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी वीक लिंक्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने प्रिपरेशन में सीखी थी विच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज एज वेल, whenever you are faced with any problem, जैसे मुझे लग रहा है कि यार मेरे को करंट अफेयर्स नहीं आता है, राइट, या फिर मेरे को लग रहा है कि मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट दैट प्रॉब्लम डाउन। ठीक है, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर नोटबुक जहां पर अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे हो, एंड व्हेन आई एम एबल टू फाइंड सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, चाहे मैं उसको 50-60% सॉल्व कर पाया हूं, I will put a tick mark in front of that। वो जो accomplishment वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है when we write our problems। एक तो क्या क्लैरिटी मिल जाती है, मेरे दिमाग में अभी एक क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में जनरली भी 50 प्रॉब्लम्स होगी, तो वो इतना ज्यादा उसका खिचड़ी बन चुका है मेरे दिमाग में दैट आई डोंट नो कि मेरे को क्या प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। सो इफ आई राइट देम डाउन आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये मेरे इश्यूज है, नाउ दे आर क्लियरली रिटन इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन सॉर्ट देम आउट नाउ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो अकम्प्लिशमेंट जब आपके पास आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में, और खुद पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब गोइंग इनटू द एग्जाम अगर आप बहुत ज्यादा मेंटली आपको लग रहा है कि नहीं बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, कोई भी तरीका नहीं एग्जाम क्लियर करने का, तो वहीं हम आधी रेस हार जाते हैं, राइट? प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर पीयर्स बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। आप खुद से कंपेयर करो कि आपको पिछले उससे पिछले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स मिल रहे थे, उससे कम ना हो ये कोशिश की जाए, कम होंगे तो अगले में बढ़ाने की कोशिश की जाए। This is how we're going to proceed with our preparation, not by looking at other people. A lot of people are stressed कि यार पेरेंट्स क्या बोलेंगे, है ना, what will my you could say mom say or my dad say who has invested so much into me, उनको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? This is just an exam, we will write it like an exam, but we need to be little passionate about the preparation in the last month, because अगर लास्ट मंथ में आपने वो कहते हैं ना वो लास्ट 5th गियर लगा लिया, तो वहां पर आप सारा मेक और ब्रेक कर दोगे अपना गेम, अगर प्रॉपर्ली उसको कर पाए तो आप, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, पर्टिकुलरली फॉर करंट अफेयर्स, इज दैट दे लुक फॉर शॉर्टकट्स। करंट अफेयर में शॉर्टकट में क्या होता है कि आपने क्लैट के अगर पास्ट 3 इयर्स के पेपर देखे तो आप ये समझ जाओगे कि वहां पर शॉर्टकट्स का ज्यादा रोल नहीं है, बिकॉज दे आस्क यू क्वेश्चंस नॉट फ्रॉम ऑल द डायरेक्ट यू कुड से टॉपिक्स। कुछ डायरेक्ट टॉपिक्स होते हैं जो सबको पता होता है, जैसे क्लैट 22 में रशिया यूक्रेन सबको पता था कि एक क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इतना बड़ा इशू है, बार बार उसकी न्यूज आती जा रही है पिछले 6 महीने तक, तो वो आ सकता है। बट हमें पता नहीं है कि उसके अलावा जो क्वेश्चन जो नीश टॉपिक्स होते हैं वो कौन से आएंगे। सो व्हाट आई हैव बीन डूइंग, आई थिंक यू वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी आल्सो, तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्लासेस, मतलब आई हैव कवर्ड मोर देन 500 टॉपिक्स सो फार। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, और आप मेरी अभी से जो लाइव क्लासेस है उसमें भी आ सकते हो। तो एट 5 PM आई डू अ क्लास फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फॉर यू गाइज, which is a subscribed class। तो अगर आप 2 महीने की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यू कैन यूज माई कोड मालपानी टू गेट 10% ऑफ एज वेल ऑन अनअकैडमी, ठीक है? आपको लिंक सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आप वहां पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करो, ठीक है? लास्ट मोमेंट पर बस ये देखो कि कैसे एक बेस्ट सोर्स मिल पाए, कैसे बेस्ट तरीका मिल पाए चीजों को करने का, और उसको बस कर दे, rather than thinking too much about it कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, यहाँ तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? डू अ लॉट ऑफ ऑफलाइन टेस्ट विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, एंड उसके अलावा you could say rely on somebody that you feel that is going to boost your preparation. So that is about the session from my side. I hope it was useful. अभी भी अगर मैं कुछ प्रॉब्लम को बताना रह गया है, या अगर मैं कोई सोल्यूशन नहीं आपको सजेस्ट कर पाया हूं, feel free to mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you guys. That is about the session from my side. If you like my sessions,
Please subscribe to the channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much, guys.